आप कुछ समझ नहीं रहे थे, इजी इजी कॉमन सेंस के क्वेश्चंस भी नहीं समझते, तब ऐसा हुआ था। लेकिन बट ऑलमोस्ट 95% आई एम हैप्पी। ओके, लेट्स स्टार्ट. Apart from these two log s and x, we have a three mode logs. But whenever we talk about multiple granularity, that picture comes in your mind. Which this one? कहाँ पे गया? You need to remember this one. कहाँ गया? Just one minute. ये वाला. This picture should come in your mind whenever we talk about multiple granularity, like a tree structure. ये सिंपल सा एग्जांपल याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता दूं. डेटाबेस है, उसमें अलग अलग फाइल होगी, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3. फाइल में क्या होते हैं? पेजेस होते हैं, जैसे नोटबुक में होते हैं ना पेजेस. पेजेस होते हैं. पेज में क्या होती है? लाइंस होती है. लाइंस इट मींस रिकॉर्ड. रिकॉर्ड में क्या होती है? फील्ड. जैसे मैथ्स की बुक ले लो आप, छोटे बच्चे की, तो उसमें क्या होता है? चेक्स वाली बुक्स होती है ना मैथ्स के लिए. तो सेम लाइक एक बुक है, बुक में पेजेस है, पेजेस में लाइन से, लाइन में भी एक बॉक्स है. that type of example is here. So let's see. First look, intention said log. You need to remember s and x, but intention said, that is known as the is. So it indicates explicit locking at lower level of the tree, but only with the said lock. जो lower level है हमारे, उसके ऊपर हम lock लगा सकते हैं is, but s means only said. तो intention said, it is similar to said. So intention said. इंटेंशन एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव में रीड और राइट बोथ हो सकता है. सो लेट्स सी इसमें क्या हो सकता है. इट इंडिकेट्स एक्सप्लिसिट लॉकिंग एट लोअर लेवल विथ एक्सक्लूसिव और सेड लॉक. विथ एक्सक्लूसिव और सेड लॉक दोनों लॉक हो सकते हैं. एक्सक्लूसिव में रीड और राइट और सेड में रीड ओनली. लेकिन लोअर लेवल पे हम दोनों लॉक लगा सकते हैं. उसके लिए भी कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स चेक करना पड़ेगा हमें. एम आई राइट? ठीक है. Now next one is the said and intention exclusive. That is the 6 SIX. S for said, IX for intensive exclusive. So intensive, said, exclusive हो गया. So subtree rooted by that node is locked explicitly in the said mode, and explicitly locking is being done at the lower level with exclusive mode locks. Subtree rooted by that node is locked explicitly in a said mode. So जो subtree है rooted by node is locked explicitly in said mode. जो root है उसको said mode में lock लगाएंगे, और explicitly locking is being done at lower level. उसके जो lower level है with exclusive mode, that is known as the 6 said and intensive exclusive. Name suggests its meaning. Said and intensive exclusive. Said it means रूट को said लगाएंगे, उसके जो लोअर लेवल है उसको हम एक्सक्लूसिव लॉक लगाएंगे. ठीक है. दैट इज द 3 मोड. intention said, intention exclusive, said and intention exclusive. Okay. Sometimes in an exam they ask explain types of lock. So most of students are writing said lock and exclusive lock only, but you need to write 5 locks: said, exclusive, intention said, intention exclusive, said and intensive exclusive. Clear? This simple theory आपको याद रखनी है. Now let's see next point. Intention locks allow a higher level node to be locked in S or X mode without having to check all descendant nodes. बाकी सब नोड को चेक करने किए बिना भी इंटेंशन लॉक एस और एक्स लॉक लगा सकता है. लेट्स सी द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स सिमिलर टू प्रीवियस वन. उसमें 2 ही लॉक थे, सेड और एक्सक्लूसिव, तो 2x2 का मैट्रिक्स बना. सो 4 ही सेल हमें मिले. लेकिन यहाँ पे कितने लॉक से देखे? 3 ये इंटेंशन के और 2 नॉर्मल. सो इंटेंशन सेड लॉक, इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक, said lock, said and intensive exclusive and exclusive lock.
तो किसके साथ कंपेटिबल है वो देखते हैं। IS ट्रू कंपेटिबल है, IS कंपेटिबल है, ये कंपेटिबल है, ये कंपेटिबल है, लेकिन ये कंपेटिबल नहीं है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज द compatibility matrix for all logs mode. Clear? This one is you need to remember in a shortcut. This is like a game, like I exact do not remember. Yes, cross. Here you can remember in a short. 4 are the true in a horizontal as well as vertical. 4 are the true. In the last rest of false. But in here diagonally instead of 4 you need to correct 3 only true. Clear? Now see my cursor. 1, 2, 3, 4 are true horizontally from the 1. Consider from the top. 1, 1, 2, 3, 4 are the true, and diagonally 1, 2, and 3 only, not 4. So by this way, you can remember this compatibility matrix easily. So here some terminology and some examples are given for the multiple granularity locking system. So transaction Ti can lock a node Q using the following rules. First rule, the lock compatibility matrix must be observed. So वो तो हमने पहले भी देखा था. Now onwards, most of we have seen that thing is repeat. That thing will be repeated. तो compatibility matrix देखा था, तो यहाँ पे भी देखना है. Next, root of the tree must be locked first and may be locked in any node. तो वहाँ पे भी same था. A node Q can be locked by Ti in S or IS mode only if the parent of Q is currently locked by same transaction Ti in either IX or IS mode. That you need to remember. Simply क्या बोल रहे हो, आपको कोई नोड Q को S और IS मोड में लॉक करना है, तो उसके पेरेंट्स कौन से लॉक में होना चाहिए, IX और IES, तो ही कंपेटेबल होंगे और बाद में आएंगे. तो ये रूल से आपको याद रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट रूल है, Q can be locked by Ti in X, SIX or IX mode only if the parent of Q is currently locked by Ti in either IX or 6 mode, SIX mode. ओके, नाउ इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे वो मैं बताऊं. यहाँ पे लॉक कौन से लगाने हमें, एस और आईएस, एस एंड इंटेंशन सेड लॉक. तो उसके लिए उसके पेरेंट्स को क्या चाहिए, आईएक्स और आईएस. और यहाँ पे देखो कौन से नोड लगाने, सीक्वेंस है एक्स, आईएक्स और एसआईएक्स. ये सीक्वेंस आप याद रख सकते हो, एक्स, आईएक्स, SIX. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, IX एंड SIX. यहाँ पे IX रूट नोड पे कॉमन है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, IS और SIX. क्लियर, हायर लेवल जो है. So Ti can lock a node only if it has not previously unlocked any node. That is Ti is two phase. So two phase हमने देखा, तो उसके हिसाब से लॉक और अनलॉक प्रोसीजर होनी चाहिए. ठीक है. Ti can unlock a node Q only if none of the children of Q are currently locked by Ti. It means आप पेरेंट्स को तब खोल सकते हो जब उसके चाइल्ड पे एक भी लॉक ना हो. ठीक है. अगर पेरेंट्स पे लॉक आप खोलना चाहते हो तो फर्स्ट यू नीड टू चेक वेदर दैट देयर चिल्ड्रंस आर अनलॉक्ड और नॉट. अनलॉक है तो ही आप पेरेंट्स को अनलॉक कर सकते हो, वरना चिल्ड्रन लॉक है तो पेरेंट्स को अनलॉक नहीं कर सकते. ठीक है. So it observes that locks are acquired in root to leaf order, whereas they are released in leaf to root order. Root to leaf, it means growing phase. Root to leaf. Not I'm saying that thing. Root to leaf. ऊपर से नीचे तक उसको हम ग्रोइंग फेज बोल सकते हो, लेकिन पिक्चोरियल ग्राफिकल आप ऐसा नहीं बोल सकते. ग्राफिकली वो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते. मैंने सोचा हम फिट कर सकेंगे. यस सर, पेरेंट्स तो चाइल्ड बोल सकते हैं.
पेरेंट्स को चाइल्ड बोल सकते हैं? नहीं सर, रूट टू लिफ्ट है ना, तो उसको पेरेंट टू चाइल्ड बोल हाँ सकते हैं। हाँ, रूट 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 किसको बोलेंगे? रूट पेरेंट्स को तो सर। नहीं नहीं, पेरेंट्स पेरेंट्स तो बीच वाले भी हो सकते हैं ना। रूट जो पहला नोड होता है ना ऊपर वाला, उसको रूट बोलते हैं, और लीफ लास्ट वाला। हाँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल सकते हो रूट टू लिफ्ट, ऊपर यस। ऊपर से लेके नीचे तक। पेरेंट्स टू चाइल्ड भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, आप कौन से एग्जाम्पल ले रहे हो और आप किसके लिए बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आपके पापा भी पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड फादर भी पेरेंट्स थे, आप भी पेरेंट्स बनने वाले हो, आपके बच्चे भी पेरेंट्स बनने वाले हो। तो ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स नहीं है, आप चाइल्ड नहीं है, आप किसी के चाइल्ड है, आपके पापा भी किसी के चाइल्ड थे। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, आप किसकी बात कर रहे हो। अगर आप अपने पापा की और आपकी बात कर रहे हो तो आपके पापा पेरेंट्स और आपके चाइल्ड हो गए। आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हो तो आप चाइल्ड में से पेरेंट्स बन गए। तो आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग राइट नाउ, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, दैट्स व्हाई। या जैसे यहाँ पे सेम एग्जांपल ऐसे ही आपको दिख रहा है ना, डेटाबेस A1 A2, फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, रिकॉर्ड A1 A2, जो मल्टीपल ग्रेन्युलरिटी में था वही है। तो एज पर दैट रूल, सपोज दैट ट्रांजैक्शन T18 रीड्स रिकॉर्ड R82 इन अ फाइल FA। ये फाइल FA में R18 है, वो डेटाबेस में रीड कर रहा है। मेरा कर्सर यहाँ पे है इसलिए आप देख सकते हो R18 कहाँ पे है, RA2, और T18 उस पे लॉक लगाना चाहता है। सो T18 नीड्स टू लॉक द डेटाबेस। डेटाबेस इट मींस ऊपर से रूट से लॉक लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे लॉक लगाएंगे A1 को, देन FA को, एंड देन इसको। ठीक है, इन विच मोड? IS मोड, क्योंकि वो आपको रूल याद रखने पड़ेंगे, प्रीवियस स्लाइड में देखा था। एंड फाइनली लॉक RA2 S मोड, उसको S मोड में लगाना है तो रूट नोड को आइदर IS और आइदर IX मोड में होना चाहिए लोग। जो ये तीसरा पॉइंट था प्रीवियस में, वो वही मैंने एग्जांपल पे यहाँ पे दिया है। सपोज दैट ट्रांजैक्शन T19 modifies record RA9 in FA. So T19 needs to lock the database area A1 and file FA in IX mode. तो ही वो RA9 X मोड में उसको अपडेट कर सकता है, एज यू नो। इसलिए मैंने बोला था एस मोड और एक्सक्लूसिव मोड दोनों अच्छे से समझ लो तो बाकी के सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सपोज द ट्रांजैक्शन T20 रीड्स ऑल द रिकॉर्ड्स इन फाइल FA यहाँ पे, then T20 needs to lock the database and area A1, ये और ये in which mode? IS mode। तभी ये सब एस मोड में लगेंगे, वो तो हमें पता ही है, कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स चेक करेंगे तभी पता चल जाएगा। ठीक है, एंड सपोज द ट्रांजैक्शन T21 रीड्स द एंटायर डेटाबेस, इट कैन डू सो आफ्टर लॉकिंग द डेटाबेस इन एस मोड, वो भी हमें पता है। सो लास्ट टॉपिक, लास्ट भी वही है। नाउ लेट्स टेक अ 1 minute break। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंटेंशन लॉक। नाउ ओरेकल का मैंने आपको बता दिया। Now let's talk about the course era certification for the design engineering. I think most of 95% have completed their Coursera course on a Coursera and uh, submitted the same thing. Just let me check that thing. In the DBMS, only 54 students have accepted the invitation in a Google Classroom. Those who are remaining, kindly accept it and upload the practical 1 and practical 2 as soon as possible. इसमें से कोई आपका फ्रेंड हो जिसका अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, वो भी आप देख सकते हो और आप बोलना अपने फ्रेंड को।
क्योंकि मैं आपको इसलिए प्रेशराइज कर रहा हूँ अभी, कोर्सेरा की डेडलाइन है, अगर वो एक्सटेंड नहीं हुई या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपको पेड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या फिर मार्क्स 0 मिल लेंगे। तो इससे उससे अच्छा है, इट रिक्वायर्स ओनली 60 मिनट्स। अभी स्टार्ट कोर्स करो ना तो 60 मिनट्स का कोर्स है, तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। आपने तो कब का एनरोल कर दिया है, तो खत्म होने वाला है, तो जहाँ पे अटके आप फ्रेंड्स की हेल्प ले लो और खत्म करो, दैट्स इट। बजरंग, आपको मैंने बोला था ना फिर से वर्ड फाइल में अपलोड करो, और सॉरी वर्ड नहीं, पीडीएफ में। बजरंग, आर यू देयर? यस सर। आपने अपलोड नहीं किया, फिर से अपलोड करो, कि नहीं कर पा रहे हो आप? मैंने किया था, वो सिंपल पीडीएफ में मैंने किया था। नहीं, यहाँ पे यही दिख रहा है, ओके मैं रिटर्न कर देता हूँ आपको, रिटर्न दिस। यस सर। Student will be notified and can do this thing. इसको डिलीट कहाँ से करते हैं? डिलीट तो शायद नहीं होगा। सर ये रिटर्न करते हैं, क्या? रिटर्न करते हैं वहां। मुझे नहीं पता, रिटर्न तो कर दिया मैंने, रिटर्न तो कर दिया। मुझे ये डिलीट करना है, आपका जो वर्ड फाइल है ना वो। कोई बात नहीं, आप वो कर दीजिए फिर से अपलोड, ठीक है? तो सर फिर से करना पड़ेगा वो कोर्स? हाँ, फिर से करना पड़ेगा। ये मनीष कुमार कौन सा वाला है पता नहीं। मनीष कुमार, दोनों मनीष कुमार आप सुन लो, आपने जो किया है वो स्क्रीनशॉट किया है, आपको वो करना है, ये सर्टिफिकेट पीडीएफ ही अपलोड करना है, ठीक है? सर मेरा हो गया कब का। अरे यस कौन है वो मुझे पता नहीं, आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन, लेकिन डायरेक्ट Yes, sir. कोर्सेरा खोल रहा है, वो उसकी वजह से ये नहीं कर पा रहा हूँ। आपको पीडीएफ फाइल सर अपलोड मेरे करनी पे है। फोटो है, सर मेरे पे फोटो है मेरे वाले आईडी पे 28 पे। ये सर मेरा नहीं है। 128 सही है, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी पीडीएफ सबकी अपलोड होनी चाहिए, पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए मैं पीडीएफ मंगवा रहा हूँ, ठीक है? क्लियर? ऐसी होनी चाहिए सबकी। देन किसका अभी पेंडिंग है? यस, अमोद कुमार, गगन। गगन आर यू देयर? अमोद आर यू देयर? कौन है यहाँ पे? अमोद तो आता ही नहीं है, अमोद को पास फोन करना पड़ेगा। गगन इज देयर और नॉट? गगन था पहले लेक्चर में, चला गया। आपका फ्रेंड हो कोई गगन और अमोद, तो उसको बताइए, लेट मी नोट इट डाउन, कौन कौन अभी बच्चा है। गगन एंड अमोद, कुमारी प्रियंका, आर यू देयर? फिर गौरव, आपको भी रीअपलोड करना पड़ेगा। गौरव आर यू देयर? यस, आपको भी रीअपलोड करना पड़ेगा, आपने भी वो किया है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसको फिर से अपलोड कीजिए, ठीक है? ओके सर। फिर ये कौन है? मनंजय, मनंजय आर यू देयर? एंड कुमारी प्रियंका, कुमारी प्रियंका इज देयर, but she is not responding, so I will put the absent mark for both lecture. Should I? कुमारी प्रियंका, और क्या कौन था दूसरा? मनंजय, मनंजय भी नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है? Let's मनंजय, मणिरत्न ठाकुर, मणिरत्न, यस सर। आपने अभी तक नहीं किया है, कर दो। ओके सर, कर देंगे। कोर्स खत्म हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया कि बाकी है? नहीं सर, अभी सर्टिफिकेट नहीं हुआ। तो जल्दी से कर दो ना बेटा। ये एक मनीष कुमार का भी बाकी है, पता नहीं कौन सा है, शायद उसने डिलीट कर दिया होगा, बस कर रहा होगा, ठीक है? पंकज कुमार, पंकज कुमार, आप तो सब जगह आगे ही रहते हो, अभी क्या हुआ?
अभी क्या हुआ? सर सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है सर। तो मैंने बोला ना किसी फ्रेंड की हेल्प लेकर वो सोल्व कर दो, हो जाएगा। सर इसने असाइनमेंट भी सबमिट कर दिए, फिर भी एक असाइनमेंट पेंडिंग बता रहा है सर। हाँ तो वो भी फिर से सबमिट कर दो ना यार। रिव्यू पीयर रिव्यू नहीं हुआ होगा। आपके फ्रेंड है कि नहीं आपके क्लास में, उसके साथ डिस्कस करके वो खत्म कीजिए ना यार। ठीक है। राहुल कुमार, ओके सर। राहुल कुमार कौन सा वाला है पता नहीं चल रहा। यस सर। नहीं, खत्म मुझे नहीं कीजिए बुलाया, आप। किसका है ये टोपी वाला? मुझे नहीं बुलाया। ये टोपी वाला कौन है? ये राहुल कुमार 138 नहीं, वो दूसरा वाला राहुल कुमार, उसका पेंडिंग है। सिब्बू का भी पेंडिंग है। सिब्बू आर यू देयर? यस सर। अभी आपका पेंडिंग है, खत्म करो। श्रवण, श्रवण आर यू देयर? श्रवण है कि नहीं है? यार श्रवण आपका क्यों अभी तक पेंडिंग है? खत्म कीजिए जल्दी से। ये डेडलाइन में ये वीक की दे रहा हूँ, बिफोर एंड ऑफ दिस वीक, बिफोर नेक्स्ट सैटरडे ये आपको खत्म करना है। ठीक है, ऑल ऑफ यू। सोनू कुमार, सोनू कुमार आर यू देयर? यस सर। अभी तक यस सर। आपका अपलोड करना सर बाकी। सर उसमें मेरा टाइम जोन है सर, वो लॉक हो चुका है सर। तो अनलॉक के लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिए, उसमें कुछ ऑप्शन आएगा। हेलो सर, हेलो। यस सर हेलो। हाँ, यस राहुल। सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी नहीं है ना? ठीक है, absent है। उसको बोल दीजिए। उदित, उदित आपने अभी तक नहीं किया? कब किया? अभी? उदित कब किया? अभी किया? नो सर। ओके ओके, अपलोड बाकी है तो कर दो ना। अपलोड के लिए क्यों आपका नाम रेशन कार्ड में कटवा रहे हो? यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, उदित बाकी है। ठीक है, चलो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बाकी है। 1 2, बजरंग फिर से करेगा, उसको भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गौरव 13 14 15 15 students are remaining to upload this thing. 15 students need to upload this thing. Clear? अभी मैं ये सिर्फ कोर्सेरा सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। डीबीएमएस के प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। एक बार ये खत्म हो जाए उसके बाद मैं उसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, okay, let's continue with the next theory. Okay, next is the concurrency control timestamp based protocol. So most of you will be clear timestamp, तो उसमें कुछ timestamp आना होना चाहिए। जैसे ठीक है, लॉकिंग में कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं। ओके, जैसे आप बैंक का कोई स्टेटमेंट निकालते हो या फिर ऑनलाइन कुछ परचेस कर रहे हो तो आपको विद टाइम स्टैम्प आपने क्या क्या प्रोसीजर की वो आ रहा है। तो सिमिलर वे यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का मतलब यही हुआ ना, तो उसमें भी कुछ टाइम स्टैम्प जैसा होना चाहिए तो हमें पता चले कि किसको वेट करना, किसको नहीं करना है, कौन कहाँ पे पहुंचा है, कौन कहाँ पे है। ऐसा कुछ होगा। हम पहले क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, so let's see. So in each transaction is issued a timestamp when it enters the system. We issue the timestamp when
it enters into the system. ट्रांजेक्शन को हम एक टाइम स्टैम्प देंगे, and old transaction T1 has time stamp TS of T1. It means T1 transaction, old transaction T1 has time stamp TS T1. टाइम स्टैम्प उसको दिया है T1 ट्रांजेक्शन को, और सेकंड न्यू ट्रांजेक्शन T2 इज असाइन टाइम स्टैम्प TS ऑफ T2. सो ट्रांजेक्शन T2 को ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प TS असाइन किया है, उसका कुछ टाइम होगा. देन फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, TS of T1 is less than TS of T2. सो बट ऑब्वियस ओल्डर वन हो तो वो पहले आया होगा, तो उसका टाइम स्टैम्प कम होगा. दूसरा जो यंगर वन है वो बाद में आएगा, तो उसका टाइम स्टैम्प ज्यादा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आप अभी 10:30 को लेक्चर में आप एंटर हुए, तो आपका टाइम 10:30 हुए, और कोई बंदा अभी 11:30 को ज्वाइन हो रहा है तो उसका टाइम 11:30 हुए, तो ओल्डर वन किसको बोलेंगे? आपको. और जो बंदा बाद में हो रहा है उसको T2 ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प. तो विथ टाइम स्टैम्प विथ टाइम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है TS का 002 सेकंड, T2 ट्रांजेक्शन 005 सेकंड पे आ रहा है, तो ओल्डर वन कौन हुआ? TS T1. सो TS ऑफ T1 लेस देन TS ऑफ T2. ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए टाइम स्टैम्प में. ट्रांजेक्शन विथ ओल्डर टाइम स्टैम्प्स आर गिव प्रायोरिटी फॉर द एग्जीक्यूशन. सो ये टाइम स्टैम्प हम किस लिए दे रहे हैं वो अब हम चेक करेंगे. टाइम स्टैम्प समझ में आ गया सबको? ठीक है. नाउ व्हाई वी रिक्वायर दिस टाइम स्टैम्प? ओके, जैसे कोई बंदा 10:30 को आ गया और अभी बंदा 11:30 को आ रहा है जब लेक्चर खत्म हो रहा है तब, तो मैं अटेंडेंस किसको दूंगा? सिंपली आंसर मुझे बताओ, अटेंडेंस किसको दूंगा? जो 10:30 बजे आया वो. जो टाइम से आएगा वो 10:30 बजे जो आया. यस, गुड. बहुत को नहीं दूंगा मर्डर. जिसका नाम आपके डाटाबेस में अब से मैं ये नहीं करने वाला. अब मैं रैंडमली कभी भी लेक्चर में अटेंडेंस लेने वाला हूँ. प्लीज अब वो मैं 1-2 दिन में वो सिस्टम बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि कुछ लोग रिस्पॉन्स भी नहीं देते और ऐसे चालू रख के बैठ जाते. सो फॉर द एंटायर लेक्चर यू नीड टू बी प्रेजेंट. सपोज आज मैंने स्टार्टिंग में ले ली और कल के लेक्चर में मैं एंड में लूंगा, या फिर दूसरे लेक्चर में मिड में लूंगा, तो आप जो बेटर लक. ठीक है. तो उसका मतलब क्या हुआ? एज पर द टाइम स्टैम्प किसको मैं अटेंडेंस दूंगा? 10:30 वाले को, क्योंकि वो पहले आया था. 11:30 वाला तो सिर्फ मुंह दिखाई के लिए आया था, तो मुंह दिखाई में अभी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो फंक्शन खत्म हो गया. ठीक है. तो प्रायोरिटी किसको देंगे? ओल्डर वन को. तो ओल्डर वन ये हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इफ वी विल हैव अ मल्टीपल लॉक रिक्वेस्ट इन अ क्यू, कई सारी लॉक रिक्वेस्ट क्यू में वेटिंग में पड़ी है, तो उसमें से हम आउट ऑफ 10 रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल हम किसको पहले चांस देंगे? तो हम पहले टाइम देखेंगे, कौन पहले रिक्वेस्ट भेजे थे उसको हम पहले चांस देंगे, कौन पहले रिक्वेस्ट चेंज किए थे उसको हम चांस देंगे. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पहले आया था ये बाद में आया था? तो उसके लिए हम टाइम स्टैम्प चेक करेंगे. ठीक है. So the protocol manage concurrent execution such that the read and write operation are executed in a timestamp order. तो timestamp order में जो आएगा उस हिसाब से वो execute होंगे. Let's see. It maintains for each data queue 2 timestamp value. 2 timestamp value वो maintain करेगा. First one W timestamp of queue and second one is the R timestamp of queue. W it means largest timestamp of any transaction that executed write queue successfully. Largest timestamp of any transaction that executed write queue successfully. It means 10 ट्रांजेक्शन हमारे पास है, उसमें से लार्जेस्ट timestamp किसका होगा उसकी वैल्यू हम उसमें ये वेरिएबल में स्टोर करेंगे. और रीड R timestamp में क्या? Largest timestamp of any transaction that executed read queue successfully. Why we have taken this thing? Let me explain.
ओके, मैं किस बेस पे बोलूंगा कि उदित सिक्योर द फर्स्ट रैंक, ऐसा बोलूंगा उदित सिक्योर द फर्स्ट रैंक। आप सब मुझे बोलेंगे सर हम भी होशियार हैं, हम भी टैलेंटेड, आप ऐसे कैसे बोल दिया कि उदित ने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है और उसके इतने परसेंटाइल है। तो देयर इज वन बेंचमार्क, उसके कंपैरिजन से मैं बोल रहा हूँ कि उदित ने फर्स्ट रैंक किया है और उदित ये अच्छा कर रहा है। सो सेम नेक्स्ट स्लाइड में कंपैरिजन आएगी कि आपका जो टाइम स्टैम्प है, यहाँ पे हमने जो कंपेयर किया वो इससे कम है या फिर ज्यादा है। सो लेट्स सी, ये एग्जांपल था, उदित ने फर्स्ट रैंक सिक्योर नहीं किया है। सपोज सर लेकिन कोई रेफरेंशियल पॉइंट तो होगा ना क्या सर? एक टाइम स्टैम्प से दूसरे को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए सर, रेफरेंशियल। उसके लिए तो मैं ये आया ना, ये आया ना, टाइम्स W टाइम स्टैम्प ऑफ Q R टाइम स्टैम्प ऑफ Q, लार्जेस्ट टाइम, लार्जेस्ट तो एक ही होगा ना, 10 लोग Yes, परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें से लार्जेस्ट तो एक ही होगा, तो वो वैल्यू हम रेफरेंस के लिए लेंगे। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज ट्रांजैक्शन T1 इश्यूज अ रीड क्यू, ट्रांजैक्शन T1 इश्यूज अ रीड क्यू। Now, if TS of T1 is less than equal to W timestamp of Q, then the read operation is rejected. Why? As write operation is in execution. For example, TS का timestamp 002 है और W timestamp 008 है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। सेम TS of T1 is greater than equal to W timestamp of Q, then the read operation is executed as it is assumed that write operation is committed. दूसरा पॉइंट समझ में आएगा ना, तो पहला वाला समझ में आ जाएगा। मुझे पता है आपके माइंड में ये क्वेरी होगा कि सर यहाँ पे हम रीड क्यू ले रहे हैं, यहाँ पे राइट का टाइम स्टैम्प देख रहे हैं, क्यू की राइट का टाइम स्टैम्प इसलिए देख रहे हैं। अगर आपकी प्रीवियस थियरी समझ में आ चुकी है ना, तो ये आप मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कमिट नहीं होगा तब तक राइट का लॉक अनलॉक नहीं होगा, जब तक वो अनलॉक नहीं होगा तब तक दूसरे लॉक कंपेटिबल नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये रिजेक्ट और ये एग्जीक्यूटेड, बिकॉज ये TS1 का जो टाइम है रीड का, वो लार्जेस्ट टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन W टाइम स्टैम्प में हमने क्या स्टोर किया, लार्जेस्ट टाइम ऑफ राइट ऑपरेशन। सपोज 8 है तो 8 के ऊपर लार्जेस्ट किसका है, ये T1। तो 8 सेकंड के बाद तो TS1 का जो टाइम है वो रीड के लिए पॉसिबल है, तो वो रीड कर सकता है, तो इसलिए वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। सो दैट और रीड ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड एज इट इज एज्यूम्ड दैट राइट ऑपरेशन इज कमिटेड। फॉर एग्जांपल TS5 और टाइम स्टैम्प इसका 3 है, तो 3 का मतलब क्या हुआ, राइट लार्जेस्ट। फिर से मैं ये देखो राइट टाइम स्टैम्प में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजैक्शन दैट एग्जीक्यूटेड राइट ऑपरेशन सक्सेसफुली। इसमें इट मींस कमिट कर दिया है वो। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे देखिए कि 3 सेकंड पे लार्जेस्ट टाइम कमिट हो गया, इट मींस 4 और 5 सेकंड पे कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसके लिए, रीड कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन हम कर सकते हैं क्योंकि वो 4 और 5 के लिए कमिट कर दिया। फॉर एग्जांपल अभी मैंने सेव कर दिया ये PPT, ठीक है, तो सेव करने के बाद अभी आप रीड कर सकते हो, इट मींस आपका एग्जीक्यूशन हो सकेगा। लेकिन अभी तक मैंने सेव नहीं किया है, कमिट नहीं किया है, और आप बीच में ही मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी तक मैंने थियरी कंप्लीट नहीं की और आप बीच में ही थियरी पूछ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आप जो मुझे क्वेश्चन पूछेंगे रिजेक्ट कर दूंगा और आपको मैं बोल दूंगा जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, लेट मी फिनिश फर्स्ट, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट का एग्जांपल क्या है कि मैंने अभी खत्म कर दिया थियरी और अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं अब आपको रिप्लाई दूंगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड थिंग। सेम वे जो पहले रीड के लिए किया वो राइट के लिए, किसका रिजेक्ट होगा और किसका राइट होगा वो आप अभी खुद से रीड कर लो।
तो दिस इज द टाइम स्टैम्प। शॉर्ट में मैं बोलूँ ना तो टाइम के ऊपर ही सब कुछ जाएगा, ठीक है। सर सर क्या सर टाइम स्टेप्स और इक्वल हो सकता है? सर कोई एग्जांपल यहाँ सब बताइए। सपोज दो स्टूडेंट्स, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता है, लेकिन माइक्रो सेकंड में उस टाइम पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप बोलो कि 10:30 को आप दोनों ने लॉगिन किया गूगल मीट में, तो 10:30 पे है, लेकिन 10:30 में हमें सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड सब कुछ चेक करना पड़ेगा, तब हम जाके डिफर हो जाएंगे। और उसके आगे जाके रिक्वेस्ट की कौन पहले दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। सो अगेन आई एम सेइंग दैट इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है। यस सर। टाइम स्टैम्प सर सही लेकिन सेम हो सकता है, सर लेकिन जैसा सर आपने एग्जांपल बताया अपलोड करने में, तो लेकिन सर टाइम स्टेप तो शायद हमारे हिसाब से सर सेकंड में वो क्या चेंजेबल नहीं होता है, वो सर मिनट में ही चेंज होता है। चलो चलो हम मान लेते हैं दोनों का टाइम स्टैम्प सही है, ठीक है, लेकिन सर उसमें से मिनट एक और सर रिक्वेस्ट, जैसे कि यस टाइम स्टैम्प सेम हो सकता है, चलो लेकिन मान लेते हैं, लेकिन उसमें से वो भी देखना पड़ेगा ना कि वो ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट लॉग के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो दूसरी चीज देखनी पड़ेगी ना। अगर सपोज आप 10:30 पे अभी देख लो आप कितने सारे स्टूडेंट्स अभी गूगल मीट में एक लेक्चर पे एक टाइम पे सब ज्वाइन हुए हैं, लेकिन उसमें से आप एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, तो कोई कंफ्लिक्ट भी नहीं आ रहा है, तो वो भी डिफर हो गया। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सपोज आप भी पूछ रहे हो, दूसरा स्टूडेंट, दोनों साथ में ही पूछ रहे हैं, तो कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर विल डिसाइड किसने पहले रिक्वेस्ट भेजा, किसने पहले रेस किया। जैसे हम अंताक्षरी कंपटीशन में नहीं था, बजर राउंड होता है, उसमें बजर कौन, उसमें भी हम माइक्रो सेकंड पे टाइम स्टैम्प देख रहे हो। अनु कपूर की जो अंताक्षरी आप देख लेना, उसमें माइक्रो सेकंड पे भी रिप्ले करके टाइम किसने पहले बजर दबाया वो भी देख रहे हैं। तो सिमिलर वे हो सकता है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो लेस देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे भी दे रखा है, इट मींस हो सकता है, ठीक है। Okay, next topic is the deadlock. That is the important, very most important. Deadlock में एक है थियरी जो IMP है वो पूछ सकते हो, बाकी सब रिपीटेड टॉपिक है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन लेक्चर सेशन। रिकवरी, ट्रांजैक्शन फेल होता है तो रिकवरी कैसे करते हैं वो भी हमने देखा था लाइक दिस। सो this is the deadlock. Okay, just wait for 1 minute. We have only 15 minutes and I think it will be over to you. So let's stop this for 2 days. Is it okay or should I continue? ओके सर। चलो, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप 2 लेक्चर में ओवर हो जाएंगे, डैम ओवरफ्लो हो जाएगा, तो फिर पानी बदल सब कुछ ऊपर से चल जाएंगे, ठीक है। सो लेट मी स्टॉप दिस थिंग, दिस पीपीटी एंड यस, ब्रजेश इज हैविंग अ डाउट। ब्रजेश, यू कैन आस्क मी। सर टाइम स्टैम्प में या सर रीड जो है टाइम स्टैम्प में आरटीएस में सर वो लार्जेस्ट होगा या लेटेस्ट होगा? सर कंफ्यूजन हो रहा है। लार्जेस्ट पीपीटी में लार्जेस्ट, यस लार्जेस्ट ही लिखा है। यस सर, लेटेस्ट क्यों नहीं होगा सर? लेटेस्ट में तो क्या होगा कि क्यू में होगा ना। सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर द लेटेस्ट, जो बंदा 10:30 को, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता ताकि आप जल्दी से समझ जाओ, 10:30 पे आके मेरा लेक्चर अटेंड कर रहा है 9:30 से, और आप अभी लेटेस्ट में आए, ठीक है, और मैं आपको अटेंडेंस दे दूं और जो 9:30 से बैठा है उसको मैं बोल दूंगा कि चलो ठीक है अटेंडेंस का टाइम खत्म हो गया, आपको मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा, विच वन इज लुक्स गुड? तो उसके लिए हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और टाइम स्टैम्प भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन, इट डिफर्स फ्रॉम 1 to 1 केस, ठीक है। तो अब एक मैं और चीज बता दूं आप सबको। इफ यू आर generally I am not saying this thing to in every lecture, but
You are giving me this just 1 minute. Let me stop this thing. So in our next lecture, we will start the deadlock, and that is the deadlock is the last topic. So in our next lecture, we will start.